I was asking you what is the difference between doing long background sun and long background stars. So somebody said that in the case of sun we get GHS sun directly from the almanac, and in the case of star we do not get GHS star directly, we get GHA Aries, and then if we add SHA star to GHA Aries, then we will get GHA star. So this diagram is also quite clear. There's Greenwich, there's Iris, and there is star. GHA star is the green arc. GHA Iris is this first one from the green to the red. And SHA star is from the red to the black. So you can see from here also GHA star is equal to GHA Iris plus SHA star. SHA is the arc of the equinoctial or angle at the pole between the meridian passing through first point of Iris and the meridian passing through the body measured westwards. So this is all clear to you so far. Otherwise, I think star is the easiest body which you can do. There is no semi-diameter, there is nothing, total correction, only refraction. There's no parallax, one simple total correction. So stars by far are the easiest to handle. So shall we do the example? And then you will do the exercise? Yes, sir. Exercises are quite small, only 5 questions in each. So let's finish off the star today. Just like you did the sun you finished yesterday as homework, so today you can do the star. So, okay, let's start. I hope everyone is there in the class. Vineet Agrawal, are you there? Yes, sir. Very good. Aditya Atri? सर उसने ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है सर. क्या? आ रहा है सर, वो ज्वाइन कर रहा है, उसकी लाइट अब आई है. अच्छा. और आत्मा सिंह? Yes, sir. Present, sir. Good. Mudit Sood? Yes, sir. Sumesh Rana? Sumesh Rana? Keshav Chaudhary? Yes, sir. Okay. So let's start. So I've got this 92 book in front of me, Longback Cron Star. So normally we write some data so that we can always refer to it. 23rd August 92. DR lat 34 degrees 31 minutes south. DR long 03 degrees 30 minutes west. So Spica, sextant altitude 45 degrees 27.2 minutes.
height of eye 11 meters, index error 2.1 minute on the arc. Calculate the direction of the PL and the position through which it passes. So GMT chronometer दिया है, but I will straight away go to GMT. Chronometer showed, let me write chronometer. Error लगाने के बाद it comes 0617. Chronometer 0617. 6 hours 17 minute 19 second. So main thing is now first we have to find the GMT. Now does the question give any indication? सुबह है, शाम है? It says PM. Sir, PM. 23rd August PM at ship in DR so and so, the sextant altitude of the star was so and so, chronometer showed. But because it is a star, azimuth diya nahi hai, we don't know whether it is east or west. Do we have any idea or no? पता चल सकता है किसी तरीके से? अभी नहीं. पीएम से कुछ पता चलता है? नहीं. Yes, sir, after mid-pass. क्या? Sir, body west of the meridian. कैसे मालूम पड़ेगा? सब मेरिडियन पैसेज हो गया है पीएम से. पीएम दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मेरिडियन पैसेज हो चुका है. किस चीज का मेरिडियन पैसेज हो चुका है? वो तो सन का हुआ ना. सन होता तो पीएम से हमको समझ आता है कि सन उधर चला गया. ये हम लोग स्टार कर रहे हैं, भी जरा ध्यान रखो. स्टार तो जरूरी नहीं कि शाम है तो तुमको खाली वेस्ट में दिखेगा, ईस्ट में भी तो दिख सकता है सन. सन तो कहीं भी दिख सकता है ना. यस और नो? स्टार तो कहीं भी दिखेगा ना. तो ये 23 डे 18 आवर 17 मिनट 19 सेकेंड, ये मेरा जहाज का क्रोनोमीटर दिखा रहा है. 23 डेट है, 18 आवर 17 मिनट. हाँ, क्योंकि क्रोनोमीटर दिखा रहा 06 17 19, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना. क्रोनोमीटर 06 दिखा रहा है, तो जहाज पे तो पीएम बोला, तो कौन सा है? ये वाला कैसे पता चलेगा? अभी पता चलेगा नहीं. सर एलएमटी निकालेंगे उससे पता चलेगा. एलएमटी निकालेंगे तो पता चलेगा, लेकिन क्योंकि लॉन्गिट्यूड 3 डिग्री वेस्ट है तो जीएमटी के पास पास ही है, हमको मालूम है. तो एलआईटी लगाएंगे, एलआईटी वेस्ट. ये जीएमटी है. कितना होगा 3 डिग्री 30 मिनट का? 14 मिनट. सर 14 मिनट. 14 मिनट. यस सर. यस सर. कैसे लगाया हिसाब? डिवाइड बाय 15.
हाँ, तो 15 से डिवाइड कर 15 से डिवाइड किया तो क्या आया? Yes. 15 मिनट्स 14 मिनट्स 14 मिनट्स आया फिर 14 मिनट। तो बुक में इसका मतलब गलत दिया। इस बुक में भी 14 है 14 है। yes. 92 में 40 है सर। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। 2008 वाली बुक में लॉन्गिट्यूड क्या दिया? तो यही 14 दिया सर हाँ, है लॉन्गिट्यूड 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट है 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, यस सर है ना? हाँ, और 92 में भी वही दिया है, तो 14 मिनट। तो माइनस हो जाएगा ना? यस सर लॉन्गिट्यूड वेस्ट जीएमटी बेस्ट माइनस 14 मिनट एग्जैक्ट, 14 मिनट एग्जैक्ट। तो LIT कितना हो गया? 6 hours 3 minutes 19 seconds और इधर हो गया 18 आवर 23 ठीक है, 23rd डेट है। तो हमारा शाम है ना शिप में PM, तो हमको ये GMT लेना है, ये GMT हमको ठीक रहेगा। सो यहाँ लिख देते हैं हम GMT 23 days 18 hours 17 minute 19 सेकेंड। ये ध्यान रखना, LMT तो खाली चेक करने के लिए हम लोग करते हैं कि कौन सा GMT हमारा है। PM है वो यहाँ से नहीं मिलेगा हमको, LMT से मिलेगा जब LMT आ जाएगा। ये तो बाय चांस क्योंकि GMT के पास ही है 3 डिग्री, तो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। अदरवाइज मैंने कल एक वर्ड ऑफ कॉशन बोला था कि जब लॉन्गिट्यूड ज़्यादा होता है 160 170 डिग्री के आसपास, तब तो डेट ऑलमोस्ट चेंज हो ही जाता है। तो ध्यान रखना पड़ता है GMT का, डेट का LMT उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, LMT के हिसाब से GMT निकलेगा। क्वेश्चन में जो डेट दिया है ये हमको LMT के हिसाब से डेट होता है। अब क्वेश्चन में डेट 23rd है तो 23rd ही रहेगा। क्वेश्चन में PM दिया है तो LMT हमारा जो PM है वो हमको ये वाला वैल्यू सूट करता है 18 आवर्स, तो इसीलिए इसी के ऊपर वाला GMT हमको ठीक लगेगा, ये वाला हमको नहीं लेना। तो 23 आवर 23 डे 18 आवर 17 मिनट एंड 19 सेकेंड। तो अब हम कर सकते हैं, हमको क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालना है अभी हमको। पहले अल्मोनेक से क्या देखेंगे? सर GHA एरीज NSHA स्टार तो निकालो अल्मोनेक डेट 23 अगस्त 92। सबके पास है या मैं स्क्रीन में शेयर करूं किसी के साथ? अगर है तो निकाल लो, जल्दी काम हो जाएगा, मुझे बताओ तो मेरे को स्क्रीन से चेंज नहीं करना पड़ेगा, कभी शेयरिंग कभी इधर, टाइम बचेगा सबका। तो कोई अल्मोनेक निकालो और मुझे बता दो।
GHA एरिस, GHA एरिस पहले हम लोग देखेंगे 23 डेज 18 आवर का कितना आता है बता दो। उसके बाद मुझे इंक्रीमेंट बताओगे 17 मिनट 19 सेकंड का। फिर आ जाएगा GHA एरिस, फिर SHA स्टार बताओगे एल्मोनेक से, आ जाएगा GHA स्टार, और उसके बाद डिक्लिनेशन भी एल्मोनेक में होगा साथ साथ, वो भी बता देना। तो कोई एक आदमी बीड़ा उठा लो इस चीज का, मुझे बता दो फटाफट, बाकी फॉलो करो। सर GHA एरीज है 1800 की, 242 16.6 मिनट्स, 242 डिग्रीज हाँ 16.6 मिनट्स। एल्मोनेक से बताना, बुक से मत दिखाना, बुक में कभी कभी मिस्टेक होगा तो पता नहीं चलेगा हाँ हमको। सर 92 वाली से बता रहा सर। हाँ ठीक है। इंक्रीमेंट सर 1 मिनट, सर 4 डिग्रीज 20.5 मिनट्स, 4 डिग्री 20.5 मिनट। GHA एरिस आ गया 6 and 5 1 कैरी 1 7 3 6 4 2 246 डिग्री 37.1। SHA स्टार और डिक्लिनेशन स्टार कहाँ मिलेगा? सर उसी पेज में एकदम राइट कॉलम। हाँ तो उसी डेट पे चले जाओ वापस, 23 अगस्त 92। यस SHA सर। स्टार कितना? सर 158 डिग्री 158 डिग्रीज 47.8 मिनट्स। 47.8 मिनट। तो ये हो गया 9 8 2 9 and 6 5 carry 1 4 405 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे। हाँ तो GHA एरिस कितना आ जाएगा हमारा? 045 डिग्रीज 24.9 मिनट। ठीक है। यस सर। डेस्टिनेशन सर डेक्लिनेशन है साउथ 11 डिग्रीज 11 डिग्रीज 07.4 मिनट्स 07.4 मिनट साउथ। ठीक है। सर इसमें कोई एरर नहीं होता है वैसे वाला? किसमें? सर डेक्लिनेशन में इसमें कोई एरर नहीं होता है? स्टार इज अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट इन स्पेस वी सेड। हाँ कई सर। बार हमने बोला कि इसका SHA डेक्लिनेशन चेंज नहीं होता। तुम इसी स्टार का डेक्लिनेशन देख लो 1 जनवरी और 31 दिसंबर, देख के जरा बताओ मुझे कुछ चेंज है क्या। सर 1 जनवरी का पेपर नहीं है उसमें एल्मनाक में। सर 16 साल में 12 मिनट का डिफरेंस है बस।
सर आपका माइक ऑफ है। तो ये 16 साल में 11 मिनट या जितना भी क्यों चेंज हुआ है, कोई बता सकता? सर ड्यू टू प्रिसिशन। सब प्रिसीजन। सर इक्विनॉक्स प्रिसिशन। या ड्यू टू प्रेसेशन, क्योंकि वो इक्विनॉक्शियल हल्का सा जब एक्सिस हिलता है, गोल घूमता है, तो इक्विनॉक्शियल भी हल्का सा घूमता है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस भी चेंज होता है ना। तो Yes, जब sir. इक्विनॉक्शियल थोड़ा हिल रहा है अलाइनमेंट से, तो डेक्लिनेशन भी वापस उसी पोजीशन में आता है 26,000 साल बाद, 25,800 ईयर्स। तो इसीलिए इतना हल्का सा फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस कितना शिफ्ट कर रहा है एवरी ईयर वेस्टवर्ड्स? 50.2 सेकेंड, Yes, sir. यानी एक साल में 1 मिनट से भी कम शिफ्ट कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन स्टार की क्या लोकेशन है उसी हिसाब से हल्का सा चेंज आता है तो आता है। तो ये समझ आ गया पॉइंट तुमको? कभी कोई ओरल में Yes, sir. क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे कि स्टार का डिक्लिनेशन क्यों नहीं चेंज होता है या बहुत हल्का सा क्यों चेंज होता है, तो यू कैन से। तो इतना दूर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो मूव करें भी तो पता नहीं चलता। ठीक है। Yes, तो sir. अभी जीएचए और डिक्लिनेशन हमको मिल गया। फॉर्मूला में और क्या चाहिए हमको? Sir, true सर altitude. ट्रू ऑल्टीट्यूड। लैटिट्यूड डीआर से मिलेगा, डिक्लिनेशन निकाल लिया हमने, जीएचए स्टार भी निकाल लिया है, फॉर्मूला से एलएचए निकलेगा, लेकिन ट्रू ऑल्टीट्यूड चाहिए हमको फॉर्मूला में डालने के लिए, तो उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। बिफोर आई गो टू द सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड, मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट तक समझने में? अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ें निकाली हैं, जीएमटी निकाला है और जीएचए स्टार डिक्लिनेशन निकाला है। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? तो आगे बढ़ते हैं ट्रू ऑल्टीट्यूड पे। तो सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड मैंने लिखा है, इसके बाद कौन सी पहले करेक्शन लगती है? Sir, index error. इंडेक्स एरर। क्या है इसमें? ऑन है, ऑन का क्या लगता है? Sir, minus. -2.1। क्या आ गया? Sir, 45 degrees, Observed. 25.1. 45 डिग्रीज 25.1 मिनट। उसके बाद क्या लगेगा? डिप। डिप हमेशा माइनस होता है। तो 11 मीटर का कितना है? Sir, minus 5.8. 5.8। Yes, sir. तो इसके बाद आ गया पेरेंट ऑल्टीट्यूड। पेरेंट ऑल्टीट्यूड क्या निकला? 45. 45 डिग्रीज 19.3। उसके बाद टोटल करेक्शन लगा दो। Sir, -1. टोटल करेक्शन माइनस होगा, स्टार में खाली रिफ्रैक्शन ही होता है, और वैसे भी -1. तो माइनस होगा -1.0। ट्रू ऑल्टीट्यूड कितना आ गया? 45. 18.3. 45 डिग्रीज 18.3 मिनट। तो आज तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट तुम बताते गए और हो गया। तो अभी तुम लोगों को प्रैक्टिस होता जा रहा है टेबल देखने का। तो तीसरा चीज़ भी मिल गया, हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू ऑल्टीट्यूड 45 डिग्रीज 18.3 मिनट। आप फॉर्मूला के लिए तैयार हैं हम लोग पी वर्कआउट करने के लिए? Yes, sir. Yes, sir.
तो इसमें क्या माइनस लगेगा ऊपर प्लस लगेगा cos p? सर माइनस। क्यों? तो दोनों सेम है। फ्लैट है, लैटिट्यूड लैटिट्यूड भी साउथ है, डिक्लिनेशन भी साउथ है, सेम नेम होने से क्या होता है? माइनस। माइनस तो cos p इज इक्वल टू, ऊपर सब साइन है, साइन ट्रू ऑल्टीट्यूड माइनस साइन लैट साइन डेक अपॉन cos लैट cos डेक, है ना? तो इक्वल टू करें तो साइन ट्रू ऑल्टीट्यूड इज हाउ मच? 45 degrees 18.3 minute minus sine of latitude is 34 degrees 31 minute into sine of deck is 11 degrees 07.4 minute upon cos lat into cos deck. इसको करो जरा साइंटिफिक कैलकुलेटर से, कितना आता है आंसर? 41 डिग्री 55.4 मिनट्स। सबने कर लिया? जिसने नहीं किया पहले बोलो, सब लोग करो तभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। सर थोड़ा चेंज आ रहा। क्या? सर 41 डिग्रीज 56 मिनट्स 56.3 मिनट्स। 41 डिग्री 55.4 मिनट आ रहा है। लैटिट्यूड उसमें डिक्लिनेशन थोड़ा सा दूसरा है दूसरी किताब में, या कैसा है? वो कह रहे थे ना कुछ सर हाँ थोड़ा सा चेंज है बुक में तो। इस वजह से 2008 वालों का थोड़ा अलग आएगा। नहीं सर बट आपकी 92 वैल्यू से ही निकाला है। सर इसमें सेक्सटेंट एल्टीट्यूड 45 डिग्री 38.7 मिनट्स लिया है सर। गलत लिया क्या मैंने? नहीं सर मैं 2008 बुक की बात कर रहा हूँ। सर बुक में होगा गलत। हाँ 45 18.3 लिया ना मैंने तो कौन सी बुक के हिसाब से लिया? 92 के हिसाब से। सर आपके वैल्यू के हिसाब से 41 डिग्री 55.4 आ रहा है। हाँ तो 92 की बुक के हिसाब से वो ठीक है। 92 वालों में सबका वही आ रहा है, 41 डिग्रीज 55.4 मिनट। हाँ सर आ गया। आ गया ना? अगर ये साइन की वैल्यू अगर हम देखें तो आता है 0.744039। 92 का सेम आ रहा था। हाँ 41 55.4। तो ये एंगल P निकला ना, ये एंगल P निकला। तो LHA क्या हुआ? सेम होगा सर। क्यों? सर ईस्ट ऑफ द मेरिडियन है कि वेस्ट ऑफ द मेरिडियन है वो पता करना। क्या क्वेश्चन में क्या बोलूं? इसमें बताओ क्या हिंट है तुम्हारे पास? ईस्ट ऑफ द मेरिडियन नहीं लिखा है, वेस्ट ऑफ द मेरिडियन नहीं लिखा है, PM लिखा है लेकिन सन नहीं है। स्टार तो ईस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है। क्या हिंट है हमारे पास? सिंपल है, ऐसा कुछ इवनिंग इतना में मुश्किल नहीं है। थोड़ा अप्लाई करो, माइंड अप्लाई करो। ये बताओ एंगल P यानी LHA दो हो सकता है, या 41 55.4 होगा
दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास? 360 minus कितना हो जाएगा? 318 degrees 4.6. 318 डिग्रीज 04.6. 4.6 मिनट। इन दोनों में से एक ही होगा ना, सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा होगा। तो अगर Yes, तुम sir. इस फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो क्या होना चाहिए? Sir, 41 वाला। क्योंकि लॉन्गिट्यूड 3 डिग्री है, लॉन्गिट्यूड 3 डिग्री है तुम्हारा dr, तो LHA और GHA में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। GHA 45 आया है तो LHA 41 होगा, 318 नहीं हो सकता। ये पॉइंट ठीक कन्विंसिंग लग रहा है या नहीं लग रहा? बट सर जो एक केस हमारा आया था जिसमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, बट सर उसमें क्या करेंगे फिर? अगर आसपास का ही हुआ, ईस्ट और वेस्ट दोनों हो सकता है। नहीं, बट उसमें तो तुम्हें कोई डाउट नहीं निकला ना, वो तो ठीक आ गया था तुम्हारा आंसर। कोई डाउट था उसमें? नहीं सर, डाउट नहीं था, बट वही अगर इस केस में डाल दें वही चीज। नहीं, स्टार उसमें इंफॉर्मेशन क्या दी थी देखो, उसमें यू आर वेरी उसमें तो श्योर, सर दिया था ना सर, मेरिडियन पैसेज। उसमें यू आर वेरी श्योर कि सन किधर है या बॉडी किधर है कि नहीं? तो क्वेश्चन उसी हिसाब से फ्रेम होगा कि तुम्हें कोई ना कोई हिंट मिले या कुछ आइडिया मिले। वो वाला जो क्वेश्चन था उसमें था PM था और सन था, यानी मेरिडियन के उस तरफ था, वेस्ट की तरफ, उसमें कोई डाउट नहीं था ना। इसमें तुम्हारे पास जानने का कोई रास्ता नहीं है। 2 पन्ने पलटा लो पीछे, 1 पन्ना पलटाओ पीछे। ये कैलकुलेटर मेथड के ऊपर में वो हैवर्साइन मेथड दिया है ना, जो टेबल वाला दिया। सर कहाँ पे? ये इसी क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर ही, शायद पन्ना ना पलटाना पड़े। पहले सॉल्यूशन हैवर्साइन फॉर्मूला से दिया, बाद में कैलकुलेटर से दिया ना, कैसे दिया? 92 वॉल्यूम में। सर इस क्वेश्चन में तो बस बुक में GMT सॉल्व किया है, उसके बाद डिक्लिनेशन, फिर सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड। ये सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड किया ना यहाँ पर, ये नीचे ये आ गया, ट्रू ऑल्टीट्यूड ट्रू जेनिथ डिस्टेंस आ गया ना, दिखाई दे रहा? ये क्वेश्चन है लॉन्ग बैकग्राउंड स्टार, ये GMT निकाला, इधर GHA स्टार और डिक्लिनेशन निकाला, इधर सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड निकाला, और इधर क्या है उधर टॉप राइट साइड में? तो ये नहीं है बुक में। तुम्हारे बुक में 2008 वाले में नहीं होगा शायद, हाँ सर नहीं है। 92 वाले में तो होगा। एनीवे, उसके नीचे नोट्स दिया है कुछ, नोट 1 2 3 4 यस सर क्या हुआ? दिया है ना? पहला नोट पढ़ो। When the converting long have LHA into calculated LHA star, a small doubt arises whether LHA A small doubt LHA arises, A B नहीं है वो। When converting LHA star, doubt arises. a small doubt arises. पढ़ो LHA जो। should be small number or a larger one, that is 041 degree or 319. In this सर स्मॉल problem, डॉट this क्या है doubt सर? हाँ, सर स्मॉल डॉट क्या है सर? स्मॉल नंबर लिखा है मेरे पास तो। ऐसे डॉट बोल रहा है ना, तो डॉट है क्या है? नहीं, तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? तुम भी पढ़ रहे होगे साथ सर नहीं साथ। लिखा है सर। बुक में है नहीं ना, इसलिए वही जो पढ़ रहा है नहीं वही है स्मॉल सर। सुनाई दे रहा है बस। 2008 वाले में डॉट नोट्स नहीं है? एक नो मिनट सर, ठहरो मैं, 2008 वाले में है नहीं। सर, लेकिन उसमें कुछ और लिखा है सर। चलो ठहरो मैं निकालता हूँ 2008, फिर देखते हैं उसमें क्या लिखा है।
सर उसमें लिखा है LHA star is needed here only to name the azimuth as east or west in the quadrantal notation. Before Marpas, LHA star would be between 180 and 360 degree and azimuth would be named east. After Marpas, LHA star would be between 000 and 180 degree and एक मिनट, azimuth would be named westerly. मैं निकाल लेता हूँ फिर बात करते हैं. Yes sir. यहाँ पर ये लिखा है कि P is 41, site is after Marpas, so LH is equal to P. Site is after Marpas कहाँ दिखा रहा है बीच में? क्या दिखा रहा है? सर बस PM ही दिया हुआ है. PM दिया है बस. हाँ, बट स्टार का तो PM से कोई कनेक्शन नहीं है ना. सर नोट में लिखा हुआ है ये. एक सेकंड में एक बार यहाँ क्वेश्चन देख लूँ. सर वो जो गौतम पढ़ रहा था मेरे ख्याल से वो है, उसमें दिया था, बट उसका समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहा. वो तो मैं समझा दूंगा, वो दैट इज नॉट एन इश्यू. बट मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो तो क्लियर है जो उसमें लिखा है, जो मैंने बोर्ड पे भी बताया. इस बुक में जिनके पास ये बुक है उनको कैसे समझ आएगा, मैं थोड़ा देख लेता हूँ एक बार. नोट 2 दिखा रहा है P is the angle inside before Marpas, LH would be between P is equal to 360 and after Marpas इतना होगा. ठीक है, तो वही PM ही से आ रहा है इसमें भी. PM at ship India section. सन के Marpas के बाद है ना, तो शायद. तो यही लिखा है कि सन का जैसे ही हमारे पास हो जाए उसके बाद जो भी होगा LHA इक्वल होगा P के. नहीं, वो सन के केस में होगा ना, स्टार के केस में कैसे होगा? लेट अस फर्स्ट चेक. तुम जब स्टार देखोगे तो ईस्ट में भी हो सकता है, वेस्ट में भी हो सकता है ना. तो ईस्ट होगा तो हमारे पास नहीं हुआ ना. सर वो उसका मेरिडियन पैसेज अगर एरीज का निकाल लेते हैं तो हम वहां से स्टार का ही मेरिडियन पैसेज टाइम निकाल सकते हैं ना. नहीं, वो लंबा होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट एजिमथ अगर हमें देता तो हमें पता चल जाता. अभी ABC टेबल से हम एजिमथ तो निकाल लेंगे, बाद में तो निकालना ही हमें PL, बट वो जनरली बाद में निकालते हैं. उससे तो हमको पता चल जाएगा कि एजिमथ अगर उस तरफ पहले. हाँ, इसने LHA स्टार पहले निकाला है ना, फिर उसके नीचे नोट दिया हुआ है. हाँ, वही LHA जब पहले निकाल रहा है तो LHA कैसे डिसाइड किया उसने कि मेरिडियन पैसेज हो चुका है? सर उसने सिर्फ एस्टिमेशन लिया है सर. नहीं, एस्टिमेशन नहीं लिया. वो एरिस वाला चेक करो बुक में जो पॉइंट है, मेरिडियन पैसेज एरिस ऐसे थोड़ा दूसरे टाइप का उसमें. सर वो जैसे LHA 180 से 360 के बीच में होगा बिफोर मरपास, वो वाला थियरी लगाया इसने. थ्योरी तो लगाया, लेकिन तुम्हें LHA कहाँ मिला है तुमको? वो तो पहले मरपास लिख रहा है ना. नहीं सर, वो इसने अप्रोक्सीमेट जो DR लॉन्गिट्यूड लिया है उससे LHA निकाला हुआ है अप्रोक्सीमेट, उसके हिसाब से फिर उसने फाइनल कह रहा हूँ. वो तो 92 वाली बुक में तो उसी तरीके से लिखा है ना. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड बोर्ड वाली में भी आल्सो. वही लिखा है सर. हाँ लिखा है, वो बताओ पॉइंट. सर ऊपर टेबल में किया हुआ है GHA स्टार के नीचे ना, इसने DR लॉन्ग लिया है और अप्रोक्सीमेट LHA स्टार लिया हुआ निकाला हुआ है. इसके ऊपर है नीचे? स्टेप नंबर 2 नीचे. हाँ ठीक है, अगर ये है तो ठीक है. डिसाइड ऑन द एलिमिनेशन शिप डेट्स अंडर डेट. इससे भी नीचे सर. नेक्स्ट पेज अगला टेबल है सर. हाँ, नोट बिलो. हाँ ये लिया है सर. LHA star is needed here only to name the azimuth as east or west in the quadrantal notation
Before meridian pass, LHA would be itna and azimuth would be named east. After meridian pass, LHA would be so much and azimuth. Cells in bold font are needed to enter table. हाँ तो कहाँ इसमें कहाँ प्रूव किया उसने? तो नहीं प्रूव किया ना, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ पहले. इसमें कहाँ बता रहा है? नहीं सर, ये तो एजिमुथ वाला है. इसके ऊपर देखो क्या लिखा है उसने. इसके ऊपर ये जो टेबल है ना, ये जहां पर GH स्टार निकाला 045, इस स्टेप में तुम्हें समझना है. SH स्टार के नीचे GH स्टार दिख रहा है 045 19.7. यस सर. उसके नीचे DR लॉन्ग माइनस कर दिया वेस्ट, बिकॉज GHA बेस्ट लॉन्गिट्यूड वेस्ट, GMT बेस्ट लॉन्गिट्यूड वेस्ट. तो क्या निकाला? अप्रोक्सीमेट LHA निकाला ना उसने. यस सर. यस और नो? जो Yes, पूछ रहा sir. था गौतम सब ने देख लिया ये स्टेप? यस सर. ये जो टेबल दिख रहा है ऊपर में, स्क्रीन शेयर है ना, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर. जहां उसने सी नोट बिलो लिखा है वो वाला लाइन देखो. GHA से लॉन्गिट्यूड वेस्ट माइनस किया था, अप्रोक्सीमेट LHA निकाल लिया उसने. वो यहीं से LHA पकड़ रहा है 41 है या 318 है. ठीक है. हाँ तो सर समझ. हाँ, वो यहीं से पकड़ रहा है. LHA 41 लेना है कि 318 लेना है. तो स्क्रीन अनशेयर कर देता हूँ अभी. तो ऐसे केस में वेर यू आर नॉट श्योर बॉडी किधर है, तो हमारा एंगल P आया 41. तो मैंने ये लिखा था कि या तो LHA 41 होगा और या 318 होगा. हम कैसे चूज करेंगे कौन सा होगा? तो मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें बताया था. इस फॉर्मूला में अगर मैं GHA डाल दूं 45 24.9 माइनस वेस्ट लॉन्ग करूं 330, तो मेरे को क्या आएगा? 41 डिग्री कुछ आएगा ना LHA. तो मैं इसको चूज करूंगा, उसको छोड़ दूंगा. और जो बुक में लिखा है, अगर अभी तुम ध्यान से सुनो, जिसके पास बुक नहीं, मैं पढ़ने वाला हूं. इन सम केसेस a small doubt arises whether LHA should be a small number or a large number. That is 41 or 319 in this problem. This doubt is removed by applying DR long on GHA star and getting the approximate LHA. The calculated LHA will be very close to the approximate LHA. तो ये पॉइंट अब समझ आ गया कैसे डिसाइड करोगे? यस सर. यस सर. है ना? तो यही तरीका है इसका, और कोई तरीका नहीं है. तो ठीक है, अब LHA निकल गया हमारा. अब हम क्या करेंगे इसके आगे? अब हमको ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा. LHA 041 डिग्रीज 55.4 मिनट. LHA और GHA माइनस करोगे तो ऑब्जर्व लॉन्ग कितना आ जाएगा? सर 3 डिग्रीज 29.5 मिनट्स. इन दोनों को करो. हाँ, GHA यस और सर. ये वाला और ये वाला. हाँ सर. कितना आ गया? 3 डिग्रीज 29.5. वेस्ट. ठीक है. तो एक पार्ट ऑफ द आंसर तो हमारा निकल गया. अब हमको पोजीशन लाइन निकालना है. तो ABC वाले मेथड से
हम लोग एजीमथ निकालेंगे। कल हमने एबीसी मेथड किया था, तो A is equal to tan lat upon tan P, B is equal to tan dec upon sin P, C आ जाएगा, एंड tan azimuth is equal to 1 upon C cos lat। तो इसको आप लोग करो अपने बुक पे, बोर्ड पे मैं नहीं करता। आई विल जस्ट राइट वॉट एवर आंसर यू गिव मी। इसमें ए क्या होगा, ऑपोजिट टू लैट होगा या नहीं? सर ऑपोजिट होगा, अपोजिट होगा सर, 90 के बीच में। बिकॉज 270 to 90 के बीच में। 270 और 90 के बीच में LHA है 41 डिग्री। 270 से आगे बढ़ोगे 280, 290, 300 करते 360 के बाद 10, 20, 30, 40 के बाद 90 जाओगे, तो 270 और 90 के बीच LHA है। LHA ये 270 है, ये 90 है, LHA तुम्हारा 40 है, तो इस तरफ आ गया तो A will be opposite to the लैटिट्यूड। हाँ, लैटिट्यूड साउथ है तो वो नॉर्थ आ जाएगा। डेक्लिनेशन सेम रहेगा, साउथ है तो साउथ रहेगा। और C क्या करोगे आप, ऑपोजिट साइंस हैं तो सर ऐड करके हायर वैल्यू का नेम रखते हैं। ऐड नहीं करोगे, सेम नेम होने से ऐड करते हो, ऑपोजिट नेम होने से सब्ट्रैक्ट करके हायर का वैल्यू दे दोगे और फिर एजिमथ निकल आएगा। जरा करो कैलकुलेट, देखते हैं। सर ए की वैल्यू आई है 0.77 नॉट। सर बी की वैल्यू आई है 0.29 साउथ। फिर 0.48 सी आ जाएगी, 0.48 नॉर्थ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, 0.48 नॉर्थ सी आ गया। एक्चुअली बुक में ज़्यादा डेसिमल प्लेस लिए होते हैं, कैलकुलेटर भी होता तो यू कैन टेक थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट आ जाता। बुक में 0.471566 तक लिया हुआ है। एजिमथ आ गया है 68 डिग्री 25.3। तो एजिमथ आ गया 68.8 डिग्री। 68.42 सर। हाँ 42 तो पॉइंट कितने हो गया, 0.7 हो गया ना सर। पॉइंट में 42 आ रहा है और डिग्री में 42 मिनट बोल रहा सर। 68 डिग्री और मिनट में बोल रहे हैं, डेसिमल में बोल रहे हैं? सर डेसिमल में 68.42 आया। 68.76 आ रहा है। 76 आ रहा है। वो एक्चुअली जितने डेसिमल प्लेस लोगे ना उसी हिसाब से आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ बुक में ये 5-6 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है, तो तुमने अगर टेबल्स देखे हों लॉग साइन के, हर एक चीज़ 5-5 डेसिमल प्लेस तक होती है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अगर डेसिमल प्लेस ज़्यादा ले लोगे तो 68.8 डिग्री आएगा। अब मुझे ये बताओ कि इसका नेमिंग कैसे करोगे? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ क्यों करोगे और वेस्ट क्यों करोगे? सर साउथ डेक्लिनेशन का नेम आ जाएगा
और सर जैसे मेरिडियन पैसेज अगर हो चुका है तो वेस्ट में होगा, तो सर साउथ वेस्ट। दोनों चीज हमें कंफर्म नहीं है। डेक्लिनेशन साउथ है सर तो प्रीफिक्स हमारा सी का जो होगा, तो सी का प्रीफिक्स लेंगे। सी का प्रीफिक्स लेंगे सर। डेक्लिनेशन 11 डिग्री साउथ है और तुम्हारा लैटिट्यूड 34 डिग्री साउथ है, तो बॉडी तुम्हारे नॉर्थ हुई कि साउथ हुई अगर वहां से मैं देखूं तो? बट बॉडी तो मूव करेगी ना, कब कहाँ आएगी क्या मालूम अभी हमें, देखेंगे वो तो बाद में। लेकिन फॉर्मूला में तुमको क्या बताया था मैंने, जो प्रीफिक्स होगा नेम सेम एज सी, प्रीफिक्स नेम सेम एज सी नॉर्थ, एंड सफिक्स नेम एज LHA। बॉडी राइजिंग और सेटिंग। तो PM AM मत देखो, फिर दोबारा वही मिस्टेक करोगे, नहीं तो स्टार में अटक जाओगे। सन में चल गया, बाकी किसी में नहीं चलेगा, क्योंकि AM PM सन से बनता है ना, तो AM ईस्ट PM वेस्ट। बाकी मून प्लैनेट स्टार में AM PM नहीं चल पाएगा, क्योंकि मून कभी दिन में भी दिखता है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। LHA 0 to 180 होगा तो वेस्ट होगा। हाँ, LHA 41 आया ना, LHA 41 आया तो वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ 68.8 वेस्ट। तो इसको बेरिंग में कितना बोलोगे? सर 291.2। अजीमत नॉर्थ 68.8 डिग्री वेस्ट और बेरिंग इज इक्वल टू सर 291.2 डिग्रीज। हाँ, पोजीशन लाइन प्लस माइनस 90 करो। 0 to 1.2 into 0 1.2। So PL सर 0 to 1.2 degrees to 201.2 डिग्री। ठीक है, तो अभी स्केच कैसा बनाएंगे हम? सर लाइंस खींचेंगे। चलो इधर करके खत्म करते हैं। ये मान लो तुम्हारा DR है, DR लैट 3431, DR लॉन्ग था 3 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ऑब्जर्व लॉन्ग कितना आया? सर 3 डिग्री 29.5 मिनट वेस्ट। किस तरफ होगा, लेफ्ट में होगा राइट में होगा? सर राइट में। 29.5 वेस्ट कम है, हाँ, तो इधर बन जाएगा। ऑब्जर्व लॉन्ग 03 डिग्री 29.5 मिनट वेस्ट। PL डायरेक्शन 21201.2। ठीक है, यस सर। इज इट क्लियर? तो लॉन्ग बैकग्राउंड, यस सर। लॉन्ग बैकग्राउंड स्टार होमवर्क में ले लो, कर लो, जो भी डाउट होगा फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इस स्पीड में चलते रहेंगे तो ठीक रहेगा, नॉट बैड। ओके सर। और इसी स्पीड मेंटेन करने काफ़ी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर यही स्पीड मेंटेन करेंगे तो अच्छा, बाद में वो स्टैगर्ड और उस समय थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा समझने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, प्रैक्टिस भी उसको ज़्यादा करना पड़ता है, और उसमें काफ़ी लड़के लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक ऑल यू। द बेस्ट, थैंक यू। थैंक